आपको सैलरी आई क्या? अरे मुझे तो आई है। एंड इफ यू वाचिंग दिस, चांसेस आर यू आर आल्सो सेलिब्रेटिंग योर पे डे टुडे। तो आज बात करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, माय पे डे रूटीन एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हेलो टेकीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम टेकी ग्लैम गर्ल एंड आज मैं आपसे एक मेरी सैलरी के बारे में चर्चा करने वाली हूँ। बट सबसे पहले लेट्स रिवाइंड टू 2019, माय वेरी फर्स्ट कंपनी, माय वेरी फर्स्ट सैलरी एंड ओ बॉय माय वेरी फर्स्ट मनी मिस्टेक्स टू। मुझे तब भी बिल्कुल आइडिया नहीं थी कि सैलरी को कैसे मैनेज करते हैं। सैलरी तो छोटी सी थी बट माय एक्सपेंसेस ह्यूज। क्रेडिट कार्ड डेट, हेलो इम्पल्सिव शॉपिंग वीकेंड, हर बार जोमेटो एंड स्विगी का फुल यूटिलाइजेशन, मूवी आउटिंग्स, ऑनलाइन सेल्स, एवरीथिंग फेल्ट लाइक अ सेलिब्रेशन. But I was not even staying at home. I was in another city. So rent, food, सब सैलरी के एंड में और मंथ एंड, oh my god, खाली वॉलेट, फुल रिग्रेट. Like literally, savings is equal to 0, stress is equal to 100. But abhi, after 6 years in this industry, I can proudly say I'm close to my financial freedom goal, yet I don't compromise on the fun. Let me break down my payday routine, the smart, grown-up version. Step 1, 80-20 split. ये क्या होता है? तो सबसे पहले जैसे ही सैलरी क्रेडिट होती है, I sit down and follow a fixed formula. 80-20 split. मतलब 80% of salary is what I divide for day-to-day use, needs and savings. 20% जाता है emergency fund में. That's the safety net. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. पहले मैं भी इम्पल्स में पूरी सैलरी एक ही अकाउंट में रख देती थी. And guess what? पूरे महीने उसी से सब कुछ निकल जाता था. SIP गया, कब EMI गया, कब शॉपिंग में उड़ गया, पता ही नहीं चलता था. एंड में वॉलेट खाली. बट अब I segregate it mentally and physically. Different accounts for different purposes. Now let's break this 80% down properly, because this is where the magic happens of discipline. 1. Account number 1, joint account. So my husband and I have this joint account for needs. So 20% of our salary goes into the joint account. ये अकाउंट वो है जहाँ घर के बेसिक मस्ट हैव्स कवर होते हैं. इसमें क्या कवर हो रहा है? घर का EMI. Yes, so this beautiful house that we are staying right now, we are paying that loan, house loan on that. फिर उसके बाद आता है monthly groceries, सब्जी, fruit, दाल, चावल, etc. etc. So we also have a car, so उसका diesel charges, electricity bill, internet bill, mobile recharge, and अगर मैंने या मेरे husband ने credit card से कुछ खरीदा हो last month, तो उसका पूरा bill clear होता है from this same account. Why this is important? क्योंकि ये सब non-negotiable bills हैं, इनको miss नहीं कर सकते. And having a dedicated account helps us to both track where the household money is going. अगर आप single हो तो no worries, you can open a second savings account and treat it as your needs account. Account number 2, personal savings account for savings and well-being. 30%. Now this is my favorite part because this is the money that works for my future. जैसे ही salary आती है, boom, 30% of my salary goes straight into my personal savings account. अब इसमें क्या होता है? SIPs. I have multiple mutual funds, mutual SIPs that auto debit from here. Stocks. If I want to invest in the stock market, I use this. कुछ पैसा passive savings के लिए भी रखा होता है, like FD or high interest savings. But सबसे important rule, this money is not to be touched at all. कोई इमरजेंसी आई तो भी नहीं, मूवी का मन हो रहा है तो भी नहीं. This is my wealth burner and I treat it like gold. अपने रिटायरमेंट, बच्चों की फ्यूचर या एक बड़ा गोल लाइक फायर, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली, ये सब यहीं से पॉसिबल है. सेम गोज फॉर माई हस्बैंड. और फाइनली आता है सैलरी अकाउंट जिसमें 25% रखती हूँ जस्ट फॉर अस. इसमें से क्या होता है? शॉपिंग, मोस्टली फॉर मी, बट हस्बैंड के लिए भी थोड़ा. डिनर डेट्स, वीकेंड्स पे आउटिंग, बनती है तो मूवीज, नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन और इवन स्मॉल ट्रैवल प्लान्स, रैंडम स्पेंडिंग. You know that lipstick that I didn't need but I still bought? That's from here. ये वो पैसा है जहाँ guilt free spending होता है. And bonus, अगर इनमें कुछ पैसा बच जाता है तो I quietly shift it to savings. It's like a mini achievement moment. Like wow, I spent smart this month. Step 2, the final 20%. Emergency fund. Strictly no touch zone. This fund is not for shopping, not for any weekend plan. It's there for just in case situations.
और क्योंकि मैं मैरिड हूँ, मी एंड माई हस्बैंड बोथ कंट्रीब्यूट 20% ईच टुगेदर ऑफ आवर सैलरीज। सो हम 40% ऑफ आवर कंबाइंड सैलरीज देते हैं फॉर इमरजेंसी फंड्स। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? कोई मेडिकल इमरजेंसी हो गई, जॉब चली गई, ले ऑफ्स हो गए, अब तो ये कॉमन हो गया है। घर में कोई बड़ा एक्सपेंस आ गया, फ्रिज रिपेयर करना है, कार रिपेयर करनी है, फ्यूचर बेबी एक्सपेंसेस, इस फंड का रूल भी बहुत सिंपल है, डोंट टच अनलेस इट्स रियली इंपॉर्टेंट। और बिलीव मी, जब लाइफ में बहुत कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, दिस फंड बिकम्स योर इमोशनल सपोर्ट एंड द बिगेस्ट सेफ्टी नेट। अनदर थिंग आई स्ट्रिक्टली फॉलो, salary के first day पे I transfer all the amounts in the respective accounts. Joint account for needs, savings account for wealth and emergency fund account. And जो बचता है that stays into the salary account. Why this helps? क्योंकि अगर पहले दिन नहीं किया तो सेकंड दिन तक उन पैसों का नामो निशान नहीं बचता। Impulse wins, planning loses. But also that it won't miss any due dates or EMIs or any SIP dates. Final thoughts? You can do this too. तो ये थी मेरी रियल एंड रिलेटेबल पेडे रूटीन। मुझे 2019 के एरर्स ने काफी कुछ सिखाया एंड नाउ आई फील मोर इन कंट्रोल। No more stress at the end of the month, no guilt spending on movies, and most importantly, we are building a secure future without compromising on today's joys. अगर आपको ये रूटीन पसंद आया या आप कुछ सिमिलर फॉलो करते हो, कमेंट्स में जरूर बताओ। और अगर कोई क्वेश्चन हो मेरे लिए तो आई एम हियर, लेट्स टॉक। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड आपको तो सारा ड्रिल पता ही है। तब तक के लिए स्पेंड स्मार्ट, सेव स्मार्टर एंड लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। एंड फॉलो टेकी ग्लैम गर्ल। बाय।